Hello everyone, today we will visit the beautiful Mehrangarh Fort. Mehrangarh Fort rises above Jodhpur like a stone titan carved straight out of the hill it stands on. It's built by Rao Jodha in 1459. After coming to Mehrangarh Fort, you have to park your car over here. So there is a designated space for the car parking. Then from there you have to walk little, just 5 minutes to the fort entrance where you have to purchase your fort ticket. The fort opens daily from morning 9 am to evening 5 pm. On Jodhpur Foundation Day, the entry is free. The ticket cost is around 100 to 200 depending on the source. For students also they have the student discount. If you have your identity card, then you can get the student discount. Then there is an option for the elevator. So if you are planning to go on the elevator to the top of the fort, then while coming back you can come, or either way you can take the lift. So you have to pay additional 50 rupees extra per person for the elevator, and they have the provision for the best audio guide. And if you will see, I saw many forts, but this fort is the best because they have explained each and every line so clearly that without guide also it is easy, you can understand every details of the fort. So it's up to you whether you want to take the guide or audio guide. Even my suggestion is that you can explore the fort by yourself because the explanation is so clear in this fort that everything you can understand easily. Inside the fort you can see different lavish palaces: Moti Mahal, Phool Mahal, Sheesh Mahal and Daulat Khan. Daulat Khan is the home to weapons, artifacts and general don't mess with us energy. Sheesh Mahal, where a single flame explodes into galaxies of reflection. Phool Mahal, drenched in gold and royal excesses. Moti Mahal is so calm and pearly. This fort is also known as Mehergarh or Mehrangarh. The fort has 7 monumental gates, each commemorating a victory. The most iconic being is Jaipur, built after triumphing over Jaipur and Bikaner. The whole place radiates power, pride and artistry, with views of Jodhpur's blue houses stretching to the horizon. Those bright indigo houses spills across Jodhpur like someone knocked over a bucket of azure paint in slow motion. Originally, Brahmins painted their home blue, but the color stuck because it kept houses cooler and repelled insects. Now the whole city glows under the sun and calm ocean beneath a stone. From the fort, the entire city is visible with blue color. This mesmerizing view is really unbelievable. Mehrangarh's museum is basically Rajasthan's greatest hits. You will love each and everything here. Watch till the end of this video to see the full cinematic view of Mehrangarh Fort. I have explained every details about this fort here, and you can see each and every details of the fort. If you are new to our channel, go ahead and subscribe it, like this video and share it with your friends and family. आप जा सकते हैं शाम को 7 बजे हिंदी में, 7:30 बजे इंग्लिश में, लाइट एंड साउंड शो आधा घंटा। ये अपना एंट्री गेट है और वो एग्जिट है, वहीं से बाहर आएंगे फिर यही रास्ता आपके वापस। अच्छा, पीछे चामुंडा माता का मंदिर है। इफ़ यू इंटरेस्टेड तो वहाँ जा सकते हैं, नहीं तो सीधा ठीक है, जाएंगे।
महाराजा आनंद सिंह का एक हेलीकॉप्टर वो 76 का जो उमेश भवन है ऊपर देखो सब जाति में बड़े इन सब का जो जोधपुर का जो लोकल ग्राम दुकान है पूरा लोकल पत्थर है और पूरा हाथ का था 550 साल पुराना काम है ऐसा लगता है जैसे अभी बनाया गया। तो ये जाकी महल है जाकी महल। यहाँ पे तो ये इस महीने का पहला रूम है इसके अंदर बहुत ही बढ़िया कलेक्शन है एलिफेंट सी हाथी होगा इनको इस तरह आने के पीछे के ऊपर बांधकर अलग अलग ओकेजन में युद्ध के समय शिकार के समय शादी के समय इनके अंदर तो टिक गोल्ड पॉलिश 18th सेंचुरी में 19th सेंचुरी का जो बेस्ट कलेक्शन है वो यहाँ तो दिस इज ऑल द एलिफेंट्स सब हाथी हो गए हैं। ये वाली एलिफेंट सैडल कहते हैं हाथी वाला हाथी की पीठ बनी जाती है जैसे ये लकड़ी रखी है इसके बाद चांदी का पैर चढ़ा है आगे राजा बैठता था पीछे सेवक हाथी की पीठ पे चमड़े के पैर से तो अलग अलग ओकेजन में अलग अलग ये रानियों के लिए होता था चारों तरफ पर्दे बांध दिए जाते थे अंदर रानियां बैठी थी वेलवेट तो बहुत ही फाइन एम्ब्रॉयडरी का काम है जरदोजी का काम ये रानियों के लिए। जैसे फैशन का दौर होता है पालकी खाना। तो ये पालकी खाना है अलग अलग डिजाइन की पालकी है ये बंद पालकी है जो रानियों के लिए होती थी और ओपन पालकी जो है राजा और राजकुमार अकॉर्डिंग टू वेट वजन के हिसाब से 8 12 लोग अपने स्वाडर के ऊपर कैरी करते ये पिक्चर देख सकते हो आप इस तरह इनका यूज़ होता था इनका हमेशा यूज़ होता था शॉर्ट डिस्टेंस में लंबी तो ये कच्ची क्राफ्ट 18वीं शताब्दी का इसके ऊपर का काम था तो इसके ऊपर चेयर के ऊपर वो बैठते थे महाराजा की बंदिया
लोकल फेस्टिवल है, जैसे पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ होता है ना, उसी तरह यहाँ पे गणगौर होता है। तो मैरिज गर्ल अपने पति की लंबी उम्र के लिए अनमैरिड अच्छे पति के लिए इसका व्रत करते हैं। आज भी होता है चैत्र शुक्ल तृतीया को अप्रैल महीने। तो ये इनको निकालते हैं हाँ, और फेस्टिवल को ले जाते हैं। गंगौर माता ये सैंपल है कि ये यही मूर्ति को निकालते हैं? इसी मूर्ति को निकालते हैं। पीतल का है कि स्टील का है? 5 kg था ये, मेन दरवाजे के लगता था। ये इसका की है, ये छोटा लॉक इसके 4 kg है। इसका कितना केजी बोले? 25। इसका चाबी ये है। और ये सब कोइंस का कलेक्शन, अलग अलग टाइप के कोइंस है। अभी पाँचू कर दो वाली वाली। इसका अलग है। अच्छा अच्छा। ये जो है ये पूरा पेंटिंग गैलरी है, इसको मिनिएचर पेंटिंग कहते हैं। मिनिएचर का मतलब? मिनिएचर का मतलब होता है बहुत फाइन, छोटा। तो ये पेंटिंग जो है यहाँ की जनरेशन ही बाटा बाकी जनरेशन सबसे ज़्यादा बनाई जाती है। जो पेपर होता है वो हाथ से बनता है, उसको राइस पेपर कहते हैं। कलर्स होते हैं वो सब नेचुरल कलर, जैसे स्टोन कलर वगैरह, वेजिटेबल कलर हो गए। और जो ब्रुश होता है वो गिलहरी के फूल से बाल से ब्रुश से ये पेंटिंग बनाई जाती है। 18वीं सेंचुरी का है, कृष्ण लीला है, 200-300 साल पुराना है, मगर ऐसा जैसा अभी बनाया गया। ये भी 18वीं सेंचुरी का, ये भी कृष्ण लीला है, भगवान कृष्ण और राधा का है। ये दोनों 19वीं सेंचुरी का है। अपनी बारात को लेकर है, इनकी मदर इन लॉ इनका वेलकम करके इनका वेलकम कर रही है, वर्मा जी इनके फेरे करवा रहे हैं। तो सब शादी के जो अलग अलग वेडिंग कितने सेंचुरी का पुराना? 19वीं सेंचुरी का, 200 साल पुराना। तो ये सब पेंटिंग के अंदर देखो 22 कैरेट गोल्ड सिल्वर ये सब कलर यूज होता है, इसलिए इस पेंटिंग के हज़ारों साल पुरानी है। तो ये वर्ल्ड फेमस वर्क है। ये शिव और पार्वती बैठे आपस में एंजॉय ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ये सब राक्षस हैं। अगर आपने शिव पुराण सुना हो तो भगवान शिव की बारात में राक्षस भी आए थे। हाँ हाँ। ये भी भगवान शिव और पार्वती का, ये दोनों तो है। शादी के बाद में हिमालय पर्वत आ गए थे घर में, घर के अंदर हिमालय इनका घर था। तो आप ऐसा कीजिए 1 by 1 देखते हुए, आप भी छोटी छोटी आ जाओ, आगे देखते रहो अंदर। हाँ, ये सब कृष्ण राधा शिव पार्वती सब अपने इंडियन क्लासिकल
थर्ड को अच्छा, रैप किया हुआ है। ये शीश महल है। ये 18वीं शताब्दी का रूम है, शीश महल। इसका यूज होता था प्रार्थना के लिए, मेडिटेशन के लिए। महाराजा अभय सिंह जी के समय बनाया गया था। इसकी सीलिंग और दीवारों के ऊपर सब कांच लगाए हुए, नीचे दीपक जलाते थे, इसलिए इसको शीश महल के रूप में जाना जाता था। ये जो बॉक्स है ये ऊपर हैंग होता था, फिर ये टूट गया इसलिए इसको यहाँ रखा। इसकी कॉपी बनाई गई ऊपर, और दीवारों के ऊपर सब भगवान गणेश, विष्णु, ब्रह्मा सदी की पेंटिंग्स है। तो 18वीं शताब्दी का रूम है शीश महल। यूज होता था प्रार्थना के लिए, मेडिटेशन के लिए। हर फोर्ट के अंदर शीश महल होता है, अलग अलग पर्पज होता है। हमें जयपुर है वो बेडरूम के रूप में था, ये अभी मेडिटेशन। ये लेकिन थोड़ा छोटा है। हाँ, ये छोटा है। अब आ गया। इसमें रोशनी और होती है और कहाँ दी भैया? का सबसे सुंदर रूम है। इसको फूल महल कहते हैं, फ्लावर। वैसे इसको रंग महल कहते हैं। इसको भी महाराजा अभय सिंह जी के समय 18वीं शताब्दी में बनाया गया। इसका यूज होता था डांसिंग में, जो भी नाच गान मुद्रा यहाँ पे होता था। इसको बनाने वाले आर्टिस्ट का नाम था फूलचंद, इसीलिए इसको नाम दिया गया था फूल महल। सीलिंग जो है नहीं वो वुड का है, उसके ऊपर गोल्ड लीफ का काम है, और अंदर जहाँ पे भी नज़र जाएगी वहाँ सब फूल ही फूल बनाए। सीलिंग के पास में जो बड़ी वाली पेंटिंग्स है वो राजा रानी देवी देवता। पिलर के ऊपर जो छोटी वाली पेंटिंग्स है वो सब राग रागिनी है। विंडो के अंदर सब कलरफुल ग्लास वो बेल्जियम के है, और ये 5 रंग का मारवाड़ का पंच रंग का झंडा है, तो इसको फूल महल कहते थे, रंग महल। पिक्चर लीजिए फिर आगे आता है। महाराजा के बेडरूम में जाता है। ये गेट क्लोज है, ऊपर वाला ऊपर है, ऊपर में ऊपर से अपन महाराजा का बेडरूम है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये यूके से आया था। महाराजा की बेडरूम की ओर जाती है। এই যে মহারাজাଙ୍କ বেডরুমର ନାଁଟା କ'ଣ? ଏଇ ନାଁଟା କ'ଣ ଯାଉଛି? ଏଇଠି ଉଠେଇବା ଆମେ। କାଇଁ? ये सब सेरेमनियल वेपन है, सेरेमनी में यूज होते थे। ये सब डिफरेंट बहुत बढ़िया काम किया हुआ है। ये स्वॉर्ड के साथ, फर्स्ट वाले के साथ गन दिया हुआ, देखो स्वॉर्ड में दिया हुआ। ये क्या है? ये भी साइड में है। अच्छा हवा आ रही है। ये सब छोटे छोटे लैगर्स हैं। अच्छा अच्छा। इनके हैंडल जो है ना, हाँ हाँ हाँ। ये सब आइवरी के, हाथी दांत की। ये सब ये हाथी दांत का है। वो 3 ब्लेड है, उसके अंदर स्प्रिंग होता था, ओह, ऐसे पेट में डाल के छोड़ते थे, पूरा ओपन हो जाता था। ये कितना सुंदर घोड़ा बनाया ये है। आइवरी का काम है, हाथी दांत का काम। और ये गन्स देखो, इसके ऊपर बहुत ही फाइन वर्क है, गोल्ड का और सिल्वर का काम है पूरा। ये रियल गोल्ड है। मैं देख एक क्या यूज था इसका? हाथ में ऐसे पुश करने का ही नहीं। नहीं, ये हाथी के सूंड के आगे बांधते हैं, सूंड से कट करते हैं।
ये क्या है? यहाँ से सिटी दिखाई दे रही है। यहाँ से उमेद भवन पैलेस और नीचे क्लॉक टावर। उमेद भवन पैलेस कहाँ है भैया? ओ जो वो वाला ताजमहल जैसे दिख रहा है, वो उमेद भवन पैलेस। टॉप लेवल हाई लेवल है वो सामने उमेद भवन पैलेस, क्लॉक टावर घंटा घर। ये उमेद भवन पैलेस, ये घंटा घर। ये घंटा घर बोल रहा हूँ। हाँ ये देख रहे हैं। अंदर नहीं जाने देंगे। 1843 का महाराजा तखत सिंह जी के द्वारा बनाया गया उनका बेडरूम था, इसलिए इसको नाम दिया गया था तखत विला। सीलिंग देखो आप वुड का है, ग्लास की पेंटिंग है। ऊपर बॉल लगे हुए, नीचे दीपक जलाते थे, डिस्को बॉल की तरह यूज होता था। बेड के ऊपर देखो कपड़े का पंखा लगा हुआ रस्सी के माध्यम से चलता था। तो 1843 का स्पोर्ट का सेक्शन वर्क है, महाराजा का बेडरूम था ये, इसलिए इसको तखत विलास कहते हैं। ये पीछे है नहीं, उस तरफ से वो सीढ़ी है। अच्छा सीढ़ी। ये छोटे से इतना बेड छोटा ही रखते थे, राजा रहना कोई षड्यंत्र होते थे, राजा को बांध के मार देते थे तो वो खाट सहित खड़े हो जाते, पैर मार रख के सोते थे। इनके 30 रानियाँ थी। 30 रानियाँ। गुड़ी हाँ पसंद करছে वो बैठ। ये ब्लू सिटी। भगवान शिव में विश्वास करते थे, इसलिए अपने मकानों को ब्लू कलर से पेंट करते थे, इसको ब्लू सिटी। दूसरा लेकिन मकान को ब्लू कलर पेंट कर दे। दूसरा बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है गर्मी में, तो ब्लू कलर सूर्य की किरणों को रिफ्लेक्ट करते हैं, इसलिए मकान, इसलिए इन मकानों को इंडिगो और क्ले से पेंट करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। वाइट से भी तो रिफ्लेक्ट होता है। वाइट से भी, अगर ये दो पंखे में शिवा और यहाँ ये दरवाजे और खिड़कियाँ हैं, इनके ऊपर गोल्ड पॉलिश किया हुआ। एक वो दरवाजा देखिए, इसके ऊपर आइवरी का काम है, हाथी दांत का। ये सब रानियों के महल के अंदर लगे हुए हैं। अभी यहाँ पे दूसरे महल हैं। अच्छा अच्छा। कितनी सुंदर लगी। ये अकाउंट्स हैं, मुनीम भी यहाँ बैठते थे। पुराने समय में जो भी यहाँ पर? हिसाब किताब लेन देन सब यहाँ मेंटेन होता था। तो मुनीम जी के बैठने का स्थान मुनीम अकाउंट्स। अकाउंट्स। अब इधर आइए। उसके द्वारा बनाया गया पेंटिंग 70 साल पुराना है, मगर स्टोरी 17th सेंचुरी। उस समय मुगल बादशाह औरंगजेब यहाँ पे अटैक करता है। उस समय जोधपुर का जो आर्मी कमांडर था दुर्गादास, वो छोटा बालक था। तो जोधपुर के सेनापति थे दुर्गादास राठौर, वो मालक महाराजा अजीत सिंह जी को अपने यहाँ से लेके बाहर निकले। तो इनका औरंगजेब का 29 ईयर स्ट्रगल चलता है, वापस जो अजीत सिंह जी को यहाँ का राजा बना। उनका जो स्ट्रगल था वो इस पेंटिंग के माध्यम से बताया गया। कि सफ़ेद घोड़े के ऊपर दुर्गादास जी जो है जंगल के अंदर पाले से बाटी पका रहा है, कुछ सैनिक निगरानी कर रहे हैं, कुछ पानी ला रहे हैं। नीचे आग के अंदर एक सैनिक जो है मीट पका रहा है। तो इस पोर्ट्रेट की क्वालिटी देखिए आप, नीचे आग जल रही नहीं, इसके रिफ्लेक्शन से देखिए पेड़ पौधे घोड़े सब लुमिनेट हो रहे हैं, चमक रहे हैं। तो ये एक यूरोपियन आर्ट है। अब अंदर आइए। ये भी पालकी है। ये लोग जो है पुराने समय में इसको जाकी महल कहते थे। जाकी का मतलब होता है झांकना, एक तरफ लुकिंग, ओह अच्छा, झांकना। कोर्टयार्ड, एक तरफ दौलतखाना कोर्टयार्ड। तो दोनों कोर्टयार्ड में पुराने समय में अलग अलग फंक्शन होते थे, आगे यहाँ से जाके देखी थी। अभी यहाँ पे सब बच्चों के क्रेडल है, घोड़े होते हैं पालना। हाँ, पालना वो सब अलग अलग राजाओं के हैं। तो लास्ट वाला अभी वर्तमान किंग का है। 1948 में उनके जन्मदिन के ऊपर जोधपुर का जो PWD डिपार्टमेंट है इसके वर्कर्स ने गिफ्ट किया था। अच्छा। जो लाइट से चलता था, बाकी सब मैनुअल। मैंने। तो लेफ्ट से जाइए, यहाँ से राउंड लेके बाहर आइए। ऑल द बेबी कैरेट के लिए ठीक है। धीरे धीरे कम्प्लेक्सली सर्दी हो जाएगी। हाँ
ବଢ଼େ ପ୍ଲେନ୍ ହେଇଯାଉଛି ନା। ଏଇଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକରେ ଚାଲେ କହିଲେ ପରା ସେ ଆଗଟା। ଏଇଟା workers gift କରେ। ये सभावती थी। हाँ, इसको मोती महल कहते थे। वैसे इसको दीवाने खास पार्लियामेंट ऑफिस, राजा अपने मंत्रियों के साथ में बैठते थे। सीलिंग देखो, वुड का है, उसके ऊपर गोल्ड और मिरर का काम है। दरवाजों के अंदर सब कलरफुल ग्लास बेल्जियम का है, और वॉल के अंदर चारों तरफ छोटे बहुत से इसके अंदर लाइट में ऑयल लैम्प रखते हैं। तो दो बेल्जियम का है, मतलब बेल्जियम से बेल्जियम से है। इम्पोर्ट हुआ है, कांच बनता ही नहीं था इंडिया में। तो ये दीपक जो है गोल्ड मिरर और ग्लास के रिफ्लेक्शन से पूरा रूम जो है मोती के समान चमकता है, इसलिए इसको नाम दिया गया था मोती महल। वो देखो ऊपर जाली है, इस जाली के पीछे सीट थी, आने जाने का रास्ता था, वहाँ रानियाँ बैठा करती। उस समय पर्दा पड़ता था, पीछे बैठती थी, अपनी एडवाइस सजेशन वो भी देती थी। फ्लैग क्या है? इस पर त्रिशूल है, हाथ में हनुमान जी का फोटो है, सब अलग अलग वर्ड्स के जो सिंबल है। तीसरा ने तो रिजेक्ट। अच्छा होली खेलते होली हैं। खेलने के लिए बॉलीवुड मूवी देखी आज हम साथ साथ हम साथ साथ हैं। सॉन्ग हमारे इंडिया में ना खेले तो ये वो अच्छा। तो ये भी पूरा पत्थर है, मगर ये पूरा वाइट वॉश किया हुआ है। जनानी देवड़ी देड़ो। मतलब जेड़ा लास्ट में दे ड्योडी लोकल वर्ड मारवाड़ी जिसका मीनिंग होता है रहने का स्थान, जहाँ सभी रानियाँ रहती हैं। ये पूरा 3 फ्लोर है, इसके अंदर काफ़ी रूम्स है जिसके अंदर सभी रानियाँ रहती हैं। इस फोर्ट का सबसे ओल्ड पार्ट सबसे पुराना है। इसके इंटरनल पार्ट के अंदर नेशनल सिंबल का काम पूरा कंप्लीट होगा, फिर ये भी म्यूजियम का काम है। दिस इज द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ जनानी जी। शॉपिंग एरिया, शॉपिंग करना है। नहीं साहब। देखेंगे क्या है सामान।